Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we are done with what? Simplest protocol, wherein we have seen that yes, we saw there is no flow control, there was no limits. You are just trying to say what? This is a machine one. If anyone has a problem, just focus it on. If we have a machine one, right? This is our machine one, and this is my machine second, right? And so on. You are sending without any limits. What I mean to say is, this is my network layer, for example. It has sometimes a packet to send. It gives to the data link layer. Data link layer does what? Makes frame out of it. Okay, gives the physical layer and is given to the recipient. A recipient physical layer will take it, right? Just give it to the data link layer. A data link layer does what? Stripping of it. Because basically what data link layer does is, you have a packet which is given by what? Network layer, right? And then network layer gives the packet, right? Is it or not? Who gives the packet? It adds its header and trailer to make it a frame, right? So this is what is gonna be stripped here. So this data link layer will strip off this, gets packet out of it, okay, gives it to the network layer. But immaterial, whenever network layer has to send a packet, it gives data link layer, data link forwards it, and immaterial, whether the receiver is receiving it or not, whether it has been, have we any guarantee that whatever we have sent that it has reached? We have no guarantee. There is no flow control in it, and even there is no error control in it, because I don't know whether this frame was garbled or not. हो सकता है कि ये फ्रेम जो आपने भेजा वो बीच में ही उसको कोई चूहा खा गया, राक्षस ले गया. Do you have a guarantee that whether this has reached or not? You don't have, because this is simplest. So what we today do is, we will add a flow control. We'll add what? So how do you think, say for example कि आपको ये algorithm इसका protocol बनाना है. For example, you guys have to make a protocol. जैसे उन लोगों ने बनाया वैसे आप बनाओ. आप कैसे करोगे ये कि what do you want? वैसे फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल मीन्स कि देखो, मैंने आपको फ्रेम भेजा, ठीक है, मैं दूसरा भेज रहा हूं, तीसरा भेज रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि क्या आप ले सकते हो या नहीं. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह है फ्लो कंट्रोल. हम कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको डिक्टेशन दूंगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूं या बोर्ड पे लिखता हूं मैं अक्सर, आप भी लिखते हो साइड में, यानी कि मैं भेज रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना. फिर आप क्या बोलते हो? अगर मैंने एक फ्रेम बना, एक बोर्ड लिख लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट बोर्ड लिख लिया, ठीक है, और आप इसको लिख रहे हो. अगर मैं दूसरा फ्रेम शुरू करूं, मैं इसको रब करूंगा और दूसरा लिखना शुरू करूंगा, आपने नहीं लिखा होगा वो, मान लीजिए, तो वो तो लॉस्ट हो जाएगा ना. इसमें तो वही किस्सा था जो सिंपलेस्ट था, उसमें हमने कोई फ्लो कंट्रोल नहीं किया. फ्लो कंट्रोल में क्या करेंगे हम? मैं ये देखूंगा कि कहीं आपने ये. So what I used to say here when I teach on board. Shall I rub it? Isn't it? You say, sir, okay, I like that. So this okay stuff now we have to add. That I am sending a frame. I need an acknowledgement. What we call the acknowledgement. What we read yesterday also. Acknowledgement from the recipient that I have received this frame. When the sender gets this acknowledgement, means this frame has been arrived at the recipient. Recipient has actually recipient got that frame. You get me? You getting me? So by adding acknowledgement, and until I have to use little twist in my code now, कि जब तक acknowledgement ना आए तब तक दूसरा फ्रेम. अब आगे आ जाओ यार, सारे आगे 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 जाओ. আলা বলছি না ওনা ভ্রম হই গ্যাপ আথি মাঝ কি না শয়তান আছে. Be like you are developing the algorithm. आगे आ जाओ यहाँ पे शाइस्ता, बीच में आ जाओ ना, कुछ यार सबरीन से ठीक. Okay, what I am saying is, be interested and develop. मैंने इससे आगे लगा थोड़ा attentive रहोगे सब लोग, वरना दीवार के साथ बैठे हो. What I am telling you is, you develop the algorithm. You tell me what I should do, as if you have done it.
ठीक है, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो बताओ। हाँ, इंक्वायरी एंड ऑल वो तो हो गया हमारा किसमें, वो तो लाइन डिस्प्ले, वो तो हम कर लेंगे जब होगा तब होगा। फ्लो कंट्रोल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं वो बाद की बात है। कनेक्शन सेटअप हो गया है, उसकी हम अब बात नहीं करेंगे, कैसे हो गया किस तरह हो गया वो हो गया। कनेक्शन सेटअप की बात नहीं हो रही, हमें बात हो रही है अब की अगर हम फ्रेम भेज रहे हैं तो हम ये नहीं सोच रहे थे सिंपलेक्स एल्गोरिथम में बिगिन करने के लिए था ताकि हमें समझ आए, उसमें ये नहीं था कि उसने पकड़ाया नहीं। सो उसका मतलब क्या कि जब मैं फ्रेम भेजूंगा, जब एक्नॉलेजमेंट वहां से आएगी मुझे ये पता चलेगा कि उसने पकड़ लिया, तब मैं दूसरा फ्रेम भेजूंगा। ठीक है, बात समझ आती है। सो उसका मतलब क्या हो गया कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती क्या मैं दूसरा फ्रेम भेजना चाहिए, उसका मतलब क्या हो गया मैं एक फ्लैग रखूंगा। फिर जिस तरह हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिथम्स किए, जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ये किया ना, कौन एल्गोरिथम्स, राइट, उसमें भी तकरीबन ऐसा ही किस्सा था। सो सेम प्रोग्रामिंग स्टफ वी विल डू हियर, राइट। व्हाट वी आर टेलिंग इज दैट इफ so say for example we have used for Frozen has used you can use anything. We will use what is called the can send. Can send is equal to true. In first we say can send is equal to true, that means you can send. But when you उसको false कब करेंगे, जब फ्रेम को भेजेंगे, फ्रेम भेजा अब और नहीं भेजना, मीन्स कैंसल इज इक्वल फॉल्स। फ्रेम भेजा कैंसल फॉल्स कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसको वापस ट्रू कब करेंगे, जब दूसरा फ्रेम सेंड करना हो। लेकिन वो कब करेंगे, जब वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा, जो वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा हम अपना ये जो कैंसल है वो ट्रू करेंगे। बात समझ आती है। अच्छा, कल हमने वो एल्गोरिथम सिंपलेस्ट किया ना, वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। उसमें जो हमारा ये जो था सेंडर जो था वो एक ही इवेंट को ट्रैक कर रहा था, उसमें एक ही इवेंट आ रहा था कि रिक्वेस्ट टू सेंड, क्योंकि बेसिकली जो सेंडर आपका है वो तो नेटवर्क लेयर्स, जो इसमें सेंडर जो है उसका जो प्रोटोकॉल हमारा चलने वाला डेटा लिंक लेयर में, वो तो नेटवर्क लेयर को ट्रैक कर रहा है ना कि क्या इसको भेजना है या नहीं भेजना है। जब रिक्वेस्ट आ गई रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी कि नेटवर्क लेयर उससे कह रही है भैया मुझे ये पैकेट भेजना है, ले लो। डेटा लिंक ने खुद तो कुछ नहीं करता ना, जब इसको नेटवर्क लेयर ऊपर से कुछ भेजेगा तब ये कर सकता है। गेटिंग नहीं। देखिए जो हमारी ऊपर वाली लेयर्स है ना, सबसे टॉप पे कौन है, एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर कौन होती है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे आपका ब्राउजर है, जैसे यू आर यूजिंग मोजिला फायरफॉक्स विच इज इंटरेक्टिंग विद योर नेटवर्क एंड यू आर यूजिंग समथिंग, एक वेबसाइट आपने खोली हुई है, ठीक है, उससे उसी के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे आप जैसे आपका वेब ब्राउजर है, द बेस्ट एग्जांपल भी वेब ब्राउजर। अच्छा, प्रेजेंटेशन लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रहती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करती है आपके, विच वर्क टुगेदर विद द एप्लीकेशन लेयर, सो दैट, क्योंकि खाली एप्लीकेशन प्रोग्राम काम तो नहीं ना करेगा, उसको इंटरेक्ट करना होता है विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट द प्रेजेंटेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या करेगी काम, सेशन लेयर जो है एक सेशन क्रिएट करती है बिटवीन द टू मशीन। जब आपको कहीं भी भेजना है, आपको भेजना है कुछ, इंटरेक्टिंग विद ऑन द इंटरनेट, आपको जो वेब सर्वर जो है जिसके साथ आपको कांटेक्ट करना है, उस वेब सर्वर के साथ एक सेशन बनाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँगा भैया आप 4 बजे आ जाओ, उसमें सेशन लेंगे, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, लाइक दैट, सेशन, सिंपल इंग्लिश वर्ड। सो एक सेशन क्रिएट करता है सेशन लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है आजकल तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम खत्म ही हो गया। ट्रांसपोर्ट का लेयर का काम ये है कि इट सेंड्स हाउ इट सेज हाउ मच डेटा यू हैव सेंट, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट जो होता है, हाउ मच डेटा यू हैव सेंट। आर यू गेटिंग मी? ओके, ये जो तब था जब डायल अप हमारा नेटवर्किंग एंड ऑल था, अब आजकल तो ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा काम, नेटवर्क लेयर बेसिकली काम जो होता है वो पैकेट्स, आईपी, इंटरनेट पैकेट्स, आईपी का काम जो सारा है वो नेटवर्क लेयर से शुरू होता है, ठीक है, बात समझ आती है। अब एप्लीकेशन लेयर ने कुछ काम किया, सेशन लेयर ने उसका ये जो है सेशन क्रिएट किया विद द वेब सर्वर फॉर एग्जांपल। अब ट्रांसपोर्ट लेयर तो ये दिमाग रखेगा कि कितने पैकेट्स गए, कितने क्या नहीं गया, ठीक है। इसमें हमारा टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हमारा होता है वो, ये कनेक्शन लेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेटाग्राम। मैं बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अभी हम ऊपर नहीं गए, वो भी ऊपर जाएंगे हम जब डेटा लिंक लेयर खत्म होगी, आफ्टर 2 days मे बी वी विल स्टार्ट रीडिंग अबाउट नेटवर्क लेयर। ओके, अब डेटा लिंक लेयर जो आपकी है, ठीक है, ये किस जो इसमें इसमें हमारे कौन सा डिवाइस बताया था मैंने जो डेटा लिंक लेयर में काम करता है? स्विचेस, इज इट? और नेटवर्क लेयर में मैंने कौन सा डिवाइस बताया काम करता है? राउटर्स, ठीक है, राउटिंग एंड ऑल वो सब नेटवर्क लेयर में होता है। ओके, और जो आपका स्विचेस हैं वो डेटा लिंक लेयर में होते हैं। अब डेटा लिंक लेयर कुछ भेज रहा है, सॉरी नेटवर्क लेयर कुछ भेज रहा है, ठीक है, टू द फॉर एग्जाम्पल अ स्विच, इट हैज टू सेट, ये स्विच एग्जैक्टली काम करता है किसके साथ? फिर टू द फिजिकल लेयर, फिर कॉन्टैक्ट होता है फिजिकल लेयर को भेजना होता है, बस में आते हैं। तो ये डेटा लिंक लेयर जो होता है इसका प्रोटोकॉल जो है वो हमेशा, और हम बाद में पढ़ेंगे कि ये प्रोटोकॉल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारे डेटा लिंक HDLC है, कभी कभार फ्रेम रिले होता है हमारे पास, ठीक है, कभी आपके पास इथरनेट है, PPP अपने परसों देखा इसका जो ना गेटवे मैंने दिखाया उसमें PPP दिखा, PPPoE मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और इथरनेट, PPP भी हमारा एक है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, फिलहाल हम जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई एग्जाम्पल हमने नहीं पकड़ी अभी, हम जनरल पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल कैसे होगा, एरर कंट्रोल कैसे होगा, देन वी विल सी हाउ द प्रोटोकॉल्स आर डेवलप्ड एग्जैक्टली, examples of that to get it perfectly. Now what I'm telling you is this data link layer will always keep track of the network layer कि क्या आपको भेजना है, so it will work on an event request to send, request, ये request send कौन करेगा इसको request? नेटवर्क लेयर, डेफिनेटली नेटवर्क लेयर आपका रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे भेजना है, ठीक है, ये इसको पकड़ेगा इन पैकेट्स को, उसका फ्रेम बनाएगा, ठीक है, फिर ये देगा और अपना कैन सेंड बनाएगा क्या? फॉल्स, इज इट? अच्छा, इतना ही नहीं करना अब, क्योंकि अब हम एक्नॉलेज की बात कर रहे हैं, आप फ्रेम भेज भी रहे हो, ठीक है, और यहां से एक्नॉलेजमेंट भी आ रहा है, यहां से फ्रेम जा रहा है, यहां से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। वी कैन हैव अ हाफ डुप्लेक्स, अगर हाफ डुप्लेक्स भी आपके पास है वो भी चलेगी इसमें चैनल, क्योंकि एक साथ तो एक्नॉलेजमेंट और फ्रेम नहीं ना आएगा, जब आप फ्रेम भेजोगे तब बाद में एक्नॉलेजमेंट आएगी। सो यू कैन यूज वन चैनल, सिंगल चैनल ओनली, जो कि आप पहले फ्रेम भेज रही है, फिर उसी चैनल से एक्नॉलेजमेंट वापस आ रहा है। अब एक्नॉलेजमेंट, अब आप ये कह सकते हो कि इसमें तो टाइम लगेगा बहुत, पहले फ्रेम भेजो फिर एक्नॉलेजमेंट पकड़ो, फ्रेम भेजो, बट विल सी लिटिल बिट मोर, इसमें तो हम एक ही फ्रेम भेज रहे हैं एक्नॉलेजमेंट। बाद में हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जिसमें हम देखेंगे कि हम बहुत सारे फ्रेम्स भेज रहे हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट एक साथ सबका दे रहे हैं, और वो भी एक्नॉलेजमेंट के लिए हम अलग नहीं काम करते हैं, उसके लिए खास करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज ए पिगी बैकिंग। सो पिगी बैकिंग हम कोशिश पड़े अटस खा लूँ, अश गुर गस नहीं, ओके, तमिस खा लून एक्नॉलेजमेंट अटस, यानी कि अलग लगाओ न इस स्लॉट एक्नॉलेजमेंट खुद क्या, इट इज कॉल्ड पिगी बैकिंग, ठीक है, अटा बोरे, कश्मीर बोलते हैं अटा बोरे उसको, दोहरी करान बींगे मामू, ठीक है, वो अटा बोरे जब आएंगे तो चालू आज का उस ऐप। Anyways, what I'm saying is, you send frame, you get the acknowledgement. First, we'll discuss them maybe tomorrow. Here we are saying that we are sending frame, we have to also get acknowledgement. So यहाँ पे आप जो send frame कर रहे हो ना, आपको receive भी करना है। So अब दूसरा इवेंट इसमें ऐड करेंगे हम, जैसे हमने रिसीवर के लिए इवेंट किया था, कौन सा? अराइवल नोटिफिकेशन। यहाँ पर भी अराइवल नोटिफिकेशन होगा, जहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट को पकड़ेगा, और जो ही एक्नॉलेजमेंट पकड़ा तो कैन सेंड क्या बनाएंगे? ट्रू। गोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, ये आप बताने चाहिए आपकी क्या करेंगे। इसके लिए तो क्या काम करना है, इसमें लिए अराइवल ही है, इसके लिए तो अराइवल है ना, ये अराइवल आ गया, ठीक है, ये उस फ्रेम को पकड़ेगा, उससे स्ट्रिप करेगा उस फ्रेम को, हेडर वेडर निकालेगा, पैकेट्स में निकालेगा, डिलीवर करेगा किसको? नेटवर्क लेयर को, और फिर फ्रेम भेजेगा। ये कौन सा फ्रेम भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट वाला, साथ ही इसका काम इतना ही है, ठीक है। सो लेट अस मेक द प्रोटोकॉल हियर, दिस इज फॉर एग्जाम्पल सेंडर, वी आर सेइंग ऑन द सेंडर साइड, ओके। हम एक पहले वेरिएबल बनाएंगे कैन सेंड,
उसको ट्रू रखेंगे कि आप कर सकते हो, ठीक है, भेज सकते हो। फिर अपना लूप चलाएंगे एक वाइल ट्रू, ओके, डू बिगिन, या आप दे दो ये ब्रेस, वो ही डू बिगिन होता है, ठीक है जनाब। कहाँ पे है ये पॉइंटर, ओके। वाइल कैन सेंड इसको ट्रू, अपना कैन सेंड ट्रू बनाओ, वाइल ट्रू रखो कि यानी कि दिस मीन्स लूप फॉर एवर, बिकॉज आपने ट्रू अंदर रखा है, वाइल कंडीशन को ट्रू जब है दैट मीन्स इट विल लूप फॉर एवर, इट विल नॉट स्टॉप। लेकिन आप चलते जाओगे, लेकिन आपके पास कुछ सेंड करने को नहीं होगा ना, तो आप तो वेस्ट करोगे टाइम। इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे बताओ, कल किया था नहीं यार, wait for event. This is a monitor, a conditional monitor, which will let you sleep until some event occurs and wakes you up. Okay, it will let you sleep because while true तो उम्र पर चलेगा ना। डेटा लिंक क्लियर हमेशा एक करता है, डेटा आपने सिस्टम ऑन किया, डेटा लिंक क्लियर का वाइल ट्रू लूप चालू हो गया, ठीक है। अगर कुछ करना नहीं है तो ये तो सीपीयू का टाइम वेस्ट करेगी ना, इसलिए इसको आप चालू रहो। हाँ, कभी क्यों चालू रहो, बिकॉज कभी भी नेटवर्क आपको डेटा दे सकती है, ठीक है। लेकिन जब स्लीप करो, जब तक कि इवेंट ना हो जाए, जब तक डेटा लिंक क्लियर आपको, तो आपको नेटवर्क क्लियर ही वेकअप करेगी, डेटा लिंक क्लियर के प्रोटोकॉल को नेटवर्क क्लियर वेक करेगी कि भैया आई हैव टू सेंड समथिंग। जब तक रिक्वेस्ट टू सेंड नहीं आता तब तक आप स्लीप करो। तो जब जो ही इवेंट आता है तो आप चेक करो क्या वो इवेंट, इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, क्या ये इवेंट रिक्वेस्ट टू, अब ये रिक्वेस्ट टू सेंड कौन करेगा, नेटवर्क क्लियर करेगी। क्या ये रिक्वेस्ट टू सेंड है, अगर है मींस कि नेटवर्क क्लियर आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे ये पैकेट्स भेजने हैं, तो फिर आप अपना काम करो चालू। क्या करोगे, पहले वो फ्रेम पकड़ो, ओके, व्हाट इज दैट कॉल्ड, गेट डेटा। आप नेटवर्क लेयर से डेटा ले लो, दरअसल ये पैकेट्स होंगे, गेट डेटा क्या होगा, ये पैकेट्स होंगे जो आपने नेटवर्क लेयर से लिए, और उनका मेक फ्रेम, उनका फ्रेम बना डालो। बनाया आपने फ्रेम, फिर क्या करोगे, सेंड करो, उस फ्रेम को सेंड करो टू द फिजिकल लेयर जो उसको ले जाएगी टू द रिसिपिएंट। और साथ में जो आपका कैन सेंड है, अब जो है ना आपने भेजा कैन सेंड जो था, इसको फॉल्स बनाओ ताकि आप फिर से, ताकि आप क्या करो, नहीं यार ये करेगी ना यहाँ पे, जब आपने फ्रेम भेजा, जब आपने फ्रेम भेजा, आप कैन सेंड फॉल्स बनाओ, ठीक है। ट्रू भी ये खुद ही करेगा ना, ट्रू कब करेगा, रिसीवर थोड़ी ट्रू कराएगा, उसको कहाँ पता है कि जब मैं एक्नॉलेज पकड़ूंगा तब मैं इसको ट्रू करूंगा। कैन सेट फिलहाल मैं फॉल्स बना रहा हूं, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसलिए अब क्या होगा, मैं और एक कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है। जब इसने ये किया, मैं फिर से कहूंगा इसको वेट फॉर इवेंट, ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इफ, अब यहां पर क्या होगा, इफ इवेंट जो आपका है, ठीक है, ये टी है यहां पे, अगर इवेंट जो आपका है वो कौन है, अराइवल नोटिफिकेशन, कि कोई फ्रेम आया है हमारे घर। अब वो फ्रेम कौन होगा जी, सेंडर के पास, वो तो एक्नॉलेजमेंट ही होगी क्योंकि हम तो सेंडर हैं। अगर हमारे घर कोई आया है, ठीक है, वो तो कौन होगा फिर, वो तो रिसेप्ट होगा उस फ्रेम का जो हमने भेजा। सो ऐसे पोस्ट मास्टर जो है हमारा, वो रिसीव लेके आया होगा जो हमने फ्रेम भेजा था, क्योंकि हम तो सेंडर है, हम बात कर रहे हैं कि हम सेंडर है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप रिसीवर भी हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका रिसिपिएंट कोड लगेगा, वो अलग होगा। ये सेंडिंग कोड है, जब आप सेंड करते हो तो उसका ये कोड है, ठीक है। अब अगर सेंडिंग कोड के लिए कुछ आ रहा है, वो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट होगी। अगर वो एक्नॉलेजमेंट कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट आई है, दैट मीन एक्नॉलेजमेंट आ गई है, ठीक है, तो क्या करोगे आप फिर, पहले रिसीव तो करो वो उसको, उस फ्रेम को रिसीव तो करो यार, पोस्ट मास्टर आया है, पकड़ तो लो पहले वो एक्नॉलेजमेंट को, ठीक है। और जो ही वो आपने पकड़ लिया हाथ में, और आप अपनी बत्ती जलाओगी, हरी बत्ती, ठीक है,
आप कहोगे कैन सेंड ओहो इज इक्वल ट्रू। ये फिर से मैं काटता हूँ, यहाँ पे वाइल यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे एंड वाइल है, ठीक है, जो है वाइल ट्रू वाला था बाहर का लूप। कोई परेशानी समझ आ रही है? You have developed a lot of code now. You should be understanding this. We have developed operating system code, so now this should be like a kid stuff for you. Are you getting what I'm saying? अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर का कोड इस तरह लिखते हैं, यहां से इस साइड लिखेंगे, ये आपका रिसीवर है जनाब, ये आपका सेंडर था, ये आपका रिसीवर को हम ब्लैक में लिखते हैं। अच्छा जी, अब रिसीवर की कहना, रिसीवर भी वाइल ट्रू लगाएगा, अपना वाइल ट्रू कोड लगेगा इसका, ठीक है। फिर कहेगा वेट फॉर इवेंट, इट विल आल्सो वेट फॉर इवेंट। इस रिसीवर के लिए तो एक ही इवेंट होगा, वो कौन सा इवेंट होगा? इफ इवेंट जो आप होगा वो कौन सा होगा? वेरी गुड, अराइवल नोटिफिकेशन, ठीक है जनाब। अगर अराइवल नोटिफिकेशन है तो क्या करोगे आप रिसीव करो फ्रेम को, जो फ्रेम आपका है उसको रिसीव करो, ठीक है, चलो रिसीव कर लिया। फिर रिसीव फ्रेम के बदले स्ट्रिप करो फ्रेम को, यू जस्ट स्ट्रिप दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन दैट डेटा लिंक लेयर इंफॉर्मेशन, मेक पैकेट आउट ऑफ इट, और डिलीवर करो, डिलीवर फ्रेम। अब ये डिलीवर डेटा रहेगा, फ्रेम तो रहा नहीं अब, ठीक है, अब फ्रेम तो रहा नहीं ना, क्योंकि स्ट्रिप जब हो गया फ्रेम खत्म, अब फ्रेम नहीं रहा, अभी पैकेट है, इसको हम डेटा बोलते हैं फिलहाल। यहाँ डिलीवर डेटा है, किसको देगा? नेटवर्क लेयर को। और क्या करेगा साथ में बताओ? वेरी गुड, इसको एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, सो हम कहेंगे इसको सेंड फ्रेम। सेंड फ्रेम ही आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी, एंड दैट्स इट। और ये रहा आपका वाइल एंड, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल तो आ गया, अब आराम से आ गया ना। ये बेसिक फ्लो कंट्रोल है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो हम करते हैं, इसका नाम लिखा ना स्टॉप एंड वेट। अच्छा, ये तो हमने कल ही लिखा था ना, दिस इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप स्टॉप करते हो, देखो आप फ्रेम भेज रहे हो, फिर स्टॉप, आप फिर इंतजार करते हो जब तक कि कौन आए, कौन आ जाएगा, कब तक? एक्नॉलेजमेंट। आप सोए हो रमीज? कौन कब तक इंतजार करेंगे? जब तक चांद ना आ जाए। चांद आएगा फिर हम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हमने इसमें एरर कंट्रोल किया? जरा देखो, एरर कंट्रोल द की मतलब है, हम कह रहे हैं सेंड फ्रेम यहाँ पे, ठीक है, चलो वो आ भी गया यहाँ पे सेंड फ्रेम, ये है ना रिसीव फ्रेम ने किया, यहाँ पे वो आ गया, अराइवल नोटिफिकेशन आ गई रिसीवर के पास, सेंडर के पास अराइवल नोटिफिकेशन आ गई, एक एक्नॉलेजमेंट आ गई है। अब किसकी एक्नॉलेजमेंट है? हो सकता है कि हाँ, जो मैंने फ्रेम भेजा, ठीक है, इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी, फॉर एग्जाम्पल इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, यहाँ से फ्रेम आ गया, एक्नॉलेजमेंट भेजी, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गई, इसने दूसरा फ्रेम भेजा, हो सकता है कि वो फ्रेम ही गार्बल हो गया हो, ठीक है, हो सकता है वो एक्नॉलेजमेंट ही खत्म हो जाए, लॉस्ट हो जाए, या करप्ट हो जाए, बात समझ आती है। तो हम इसमें ये जो है आपका स्टॉप एंड वेट है, दिस वी यूज फॉर अ नॉइजलेस चैनल। ये स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल आपके हैं, स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल आपका है, ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर नॉइजलेस चैनल। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास नॉइज है ही नहीं, जब नॉइज है ही नहीं, जो हम फ्रेम भेज रहे हैं वो कभी खराब होगा ही नहीं, और जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो कभी खराब होगी ही नहीं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। लेकिन इन रियल वर्ल्ड वी हैव नॉइजी चैनल्स, so why we then doing noiseless protocol? To understand, to develop protocol for noisy। इसे noiseless ये तो कभी इस्तेमाल होगा ही नहीं, बिकॉज कोई भी ऐसी चैनल नहीं होगी जिसमें नॉइज नहीं होती, ठीक है। ईमेल मैसेज क्या आ गई? You getting what I'm saying or not? Any confusions?
कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हाँ जी, any confusions, tell me any questions, because we moved to the, we develop error control to it. इसका एरर कंट्रोल करेंगे, बताओ जल्दी। Okay, no problems, then we'll develop an error control to it, and what is called as there is stop and wait। यही stop and wait करेंगे, ठीक है। लेकिन stop and wait में जो हम कर रहे थे, इसमें हम एक फ्रेम भेज रहे हैं, ये आपको समझने की बात है। हम एक फ्रेम भेज रहे हैं, उसके एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाद में हम कुछ और करेंगे, क्योंकि हम एक फ्रेम भेज के उसका इंतजार करना, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। हम बहुत सारे फ्रेम भेजने चाहते हैं। अब बहुत सारे फ्रेम जब भेजेंगे, उसमें फ्लो कंट्रोल ज़्यादा ही करना पड़ेगा और एरर कंट्रोल भी ज़्यादा ही करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, फिलहाल हम एक फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट, ARQ। ARQ means automatic repeat request। ठीक है, automatic repeat request। This is to add this was your stop and wait was for your flow control, right? And this ARQ is for your error control। Now we need to understand what we have sent is reached exactly that frame. It is not the other frame, it is not the wrong acknowledgement, it is perfectly. So how we do that? Let's think about it. So what we do is we set a frame, right? And we want to know that this frame has reached there, because I will send another frame, then another frame, then I need to know the particular frame which I sent. Yes, very good. So I need to have a numbering of a frame, that's called sequence number. We'll put a sequence number with the frame so that I will identify this particular sequence number will have gone, and with this particular sequence number I will have particular acknowledgement number. So it is not just acknowledgement number। एक तो हो गया कि मैं भेज रहा हूँ और वो कह रहा है हाँ पहुंच गया। हम तो इतना ही कर रहे थे खाली, वो थिया हाँ वो थिया वोत ऐसे ही करा, मगर कुछ वोत मजमा को कहाँ गब हो सकता है मैंने दो भेजे वोत हम वो तो वोत एक तो खत्म हो गया, दूसरे का वोत का ये हो गया ये रिसीव। ठीक है, अब मुझे बताना पड़ेगा कि उसका फ्रेम नंबर है, मैं भेज रहा हूँ फ्रेम नंबर 1, वो कहता है वोट नंबर 1, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, यू गेटिंग मी, वोट नंबर 2 सॉरी फ्रेम नंबर एंड ही इज सेइंग एक्नॉलेज नंबर 2, सो आई गेट एग्जैक्टली। अब मैं कहूँगा फ्रेम नंबर 3, अब ये भी करने की जरूरत नहीं है कि फ्रेम नंबर 3 फ्रेम नंबर 4 हम आर्बिट्री नंबर देते जाएंगे, फिर उसमें कंफ्यूजन होता जाएगा बहुत। हमें क्या करना है, हम कहेंगे हमने भेजा मान लीजिए n फ्रेम, उसका एक्नॉलेजमेंट n होगा। अब n+1 फ्रेम, उसका एक्नॉलेजमेंट n+1, फिर से n, यानी कि अगर मॉड्यूलो 2 करेंगे 0 उसके बाद 1 होता है, 1 को ऐड करेंगे फिर से बनेगा 0। मॉड्यूलो 2 में क्या होता है, 0 को ऐड करो 1 बनेगा 1, 1 को ऐड करो 1 बनेगा 0, isn't it? 0 + 1 is 1, 1 + 1 is again 0। सो यानी कि हम भेजेंगे 0 फ्रेम, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 0, बात समझ आई। लेकिन जब हम भेजूंगा ना 0 फ्रेम, एक्नॉलेजमेंट वहां से आएगी नहीं 0, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 1, यानी कि हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट सीक्वेंस नंबर, हम सेंड वो करेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं सेंड, जो हमें सेंड करना है नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड, व्हाट आई मीन टू से, मुझे नेक्स्ट फ्रेम फिलहाल करना है 0, चलो भेजो 0। जो वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगी ना वापस, वो 0 की नहीं आएगी, वो कहेगा कि नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड जो आपका है उसका एक्नॉलेजमेंट, वो वहां से 1 भेजेगा। क्या भेजेगा कि भैया आप 1 करो सेंड, ठीक है। जब वहां से आएगा 1, उसका मतलब हो गया कि उसने 0 पकड़ा है, अब ये 1 कहते हैं भेजो, तो मैं अब 1 वाला फ्रेम भेजूंगा, ठीक है। और वो वापस क्या करेगा सेंड
0 modulo 2 arithmetic, is it? Because in modulo 2, if we have 0, if you plus 1, that equal to 1, right? But if you have 1, you again add 1, 1 plus 1 is 2, that is 0, 1 goes in a carry. So 1 0 0 1, so we are sending 0, वहां से आएगा वापस acknowledgement 1, हम 1 को भेजेंगे, वहां से आएगा acknowledgement उसको 0 को. सो इस तरह से हमारा इसमें एरर कंट्रोल आ जाएगा. We'll understand it properly when we do the protocol. बात समझ आती है. और इसमें एक और चीज भी होगा कि हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने फ्रेम को भेजा. अब इसमें बहुत सारे सिनेरियो आ सकते हैं ना. फ्रेम तो आपने भेजा, वहां से एक्नॉलेजमेंट निकली, ठीक है, लेकिन उसको बीच में, ठीक है, कोई खा गया, मुदा विचार मंस, एक्नॉलेजमेंट तो आ नहीं रही, तो उस सूरत में क्या करोगे आप? एग्जैक्टली, वी हैव टू रीसेंड इट. इस रीसेंड करने के लिए पहले आपको 2 काम करने पड़ेंगे. एक ये काम कि जब आपने फ्रेम को भेजा, उस फ्रेम को खाली भेजना ही नहीं है बल्कि स्टोर भी रखना है. जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट ना आती उसको स्टोर करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जरूरी नहीं कि ये फ्रेम ही बीच में लॉस्ट हो गया या इसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया. अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी, फ्रेम पहुंच भी गया, मान लीजिए फ्रेम आपके पास पहुंच गया है लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी, मुझे कैसे पता कि आपके पास, मुझे तो कोई गारंटी नहीं कि आपके पास पहुंचा है ना, मुझे तो फिर से भेजना पड़ेगा ना, आई हैव टू रीसेंड इट. या फ्रेम ही लॉस्ट हो गया तब भी रीसेंड करना है. तब तो एक्नॉलेजमेंट आएगी नहीं. जब मैंने फ्रेम भेजा उसको वो पहुंचा ही नहीं, एक्नॉलेजमेंट कहां से आएगी? या मैंने फ्रेम भेजा, आपने पकड़ लिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो वापस आ रही है, ठीक है, वो लॉस्ट हो गई, तब भी मुझे रीसेंड करना है. इसलिए मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा सेंडर के पास कि मैं फ्रेम बनाऊंगा, उसको स्टोर भी करूंगा, भेजूंगा भी लेकिन स्टोर भी करूंगा. ठीक है, ये बात मुझे रीसेंड करना पड़ेगा. अच्छा, एक और चीज होता है कि, एक और चीज ये था कि देखिए वहां से जो आ गई आपकी, ये जो आगे एक्नॉलेजमेंट, वो गार्बल्ड था, करप्टेड था. आप रीसेंड कर सकते हो फिर से, है ना. एक तो लॉस्ट हो गया, तब तो रीसेंड करना ही करना है. लेकिन अगर देखिए एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आ रहा है ना, अब मैं कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा? क्या मैं उम्र भर इंतजार करूंगा? मैं क्या करूंगा फिर उसके लिए? नहीं, यस, सिंपल सी बात है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे जब फ्रेम भेजा मैंने, मैं उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा हूँ ना. स्टॉप एंड वेट ही है ना, ये भी तो स्टॉप एंड वेट ही है ना. इसमें तो आप वेट ही कर रहे हो ना. आपने भेजा, आप स्टॉप कर रहे हो, उसके बाद वेट कर रहे हो. लेकिन कब तक? जब तक ना मिले एक्नॉलेजमेंट. अब एक्नॉलेजमेंट आ ही नहीं रही, अब मैं कब तक वेट करूंगा यार, ये भी तो बताओ. तो मैं एक टाइमर रखूंगा, टाइम अप हो गया जी, मैं फिर से फ्रेम भेजूंगा. लेकिन हो सकता है कि ये बीच में जो है ना, ये लड़कियों की तरह बीच में बैठा था और निकली थी घर से कॉलेज, लेकिन बीच में सहेली आ गई तो बैठ गई बातें करने, ठीक है, तो हो गया. अब जितना मेरा टाइमर था, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना मेरा टाइमर था वो टाइमर तो खत्म हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ नहीं रहा. मैं ये समझ रहा हूँ कि एक्नॉलेजमेंट खत्म है, लेकिन मुझे मत पता है कि वो बैठ गई है दरबार करने. वो बैठ गई थी दरबार करने, आई मीन टू से मे बी ट्रैफिक जैम था एंड ऑल, किसी वजह से आपका एक्नॉलेजमेंट रुक गया है, वो बाद में आ गया. लेकिन एक्नॉलेजमेंट मैं करता हूं एक्सपेक्ट किसका? जो मुझे फ्रेम भेजना है. अगर एक्नॉलेज, अब तो मैंने रीसेंड कर लिया, ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट आ गया है, ठीक है, आई विल अंडरस्टैंड बाय द सीक्वेंस नंबर कि ये जो है ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करूंगा. या फॉर एग्जाम्पल आप रिसिपेंट की तरफ देखो, इस तरह आपको समझ आ जाएगा. आपने फ्रेम भेजा, वो पहुंच गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट है. आपने एक्नॉलेजमेंट वापस भेजी कि भैया ये फ्रेम मेरे पास आ गया, आप दूसरा फ्रेम भेजो, ठीक है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया. मैं क्या करूंगा? यहां से मैं दूसरा ये भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, मेरा टाइमर अप होगा, मैं उसको दूसरा भेजूंगा, फिर से भेजूंगा वही फ्रेम. आपके पास वो फ्रेम तो ऑलरेडी पहुंच चुका है ना. जब आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके दूसरा फ्रेम, लेकिन जब मैं पुराना ही फ्रेम फिर से दे रहा हूं तो डुप्लीकेट फ्रेम हो गया ना.
हाँ, सीक्वेंस नंबर पे फिर पकड़ेंगे हम इसको। अगर सीक्वेंस नंबर सेम आ गया है मतलब ये कि डुप्लीकेट फ्रेम है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, सीधे डिस्कार्ड करेंगे और एक्नॉलेज नहीं भेजेंगे इस चीज़ की। और ये सारी चीज़ें हमें दिमाग रखना है जब हम अपना प्रोटोकॉल बनाएंगे। दिस विल बी द लास्ट थिंग वी विल डू टुडे एंड यू विल जस्ट बी इंटरेस्टेड। आई एम सीइंग दैट यू आर गेटिंग स्लीपी। स्लीपी? किसको सोना है? वो हाथ खड़े करो, इसको सोना है। अच्छा, पहले रिसीवर सोनक शादाब से बेचारा सोरे शंगक से खासी शादाब। मैं क्या लिख रहा हूँ? रिसीव। मैं कस अंदर। अच्छा, मुझे तो लगता है मैं ही सो गया हूँ। रेड पेन में होना चाहिए ना, सेंडर दा खून दा रंग। तो पाजी की करते हैं सेंटर में, क्या होगा बताओ जरा। अबे आप तो जाग जाओ। सेंटर में क्या करेंगे पहले? वाइल ट्रू से पहले क्या करते हैं? कैन सेंड नहीं रखते हैं? कैन सेंड ट्रू। एक तो कैन सेंड ट्रू रखा जाएगा और दूसरी बात सीक्वेंस नंबर, विल सेट सीक्वेंस नंबर टू बी 0। चलो हम यहां पे क्या करते हैं काम, हम सीक्वेंस नंबर जो आपका है SEQ वो रखते हैं 0। ओके, और कैन सेंड की रखेंगे। उसका मतलब क्या हो गया कि तुसी भेज सकते हो, सोने का नहीं है अभी। अच्छा, फिर यहां पे लगेगा इन्फिनाइट लूप वाइल ट्रू और ब्रेस शुरू। इसका बाद में देखेंगे वाइल लूप का ये कहाँ खत्म होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे यहां पे? वाइल ट्रू के बाद क्या करते हैं हम, जल्दी बताओ। वेट फॉर इवेंट। कौन दा इवेंट? कौन सा इवेंट? वेरी गुड, रिक्वेस्ट। अब मैं लिखूंगा RTQ, RTS सॉरी, रिक्वेस्ट टू सेंड। शादाब, कौन करेगा रिक्वेस्ट इसको सेंड करने को, और किसको रिक्वेस्ट हो रही है? खाली शादाब बोलेगा। ये तो सेंडर की बात हो रही है ना। दिस इज ओनली वी आर टॉकिंग सेंडर, इसमें रिसीवर कहीं का दखल ही नहीं है कुछ। हम यहाँ पे इवेंट का कर रहे हैं रिक्वेस्ट टू सेंड। किसकी रिक्वेस्ट किसको सेंड? तू बता। क्या बक रहा है तू बता। नेटवर्क लेयर जो है उसकी रिक्वेस्ट है किसके साथ? डेटा लिंक लेयर को। सेंड विल करेगा डेटा लिंक लेयर को। नेटवर्क लेयर जो हमारा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। भाई ये तो मैं बता चुका हूँ 10-15 बार। अब आप सो रहे हो यार सच में। सो वेट फॉर इवेंट जो है रिक्वेस्ट टू सेंड है, दरअसल नेटवर्क लेयर रिक्वेस्ट कर रही है डेटा लिंक लेयर को कि भैया मेरे को पैकेट्स हैं ये ले लो, है ना। अच्छा, अब डेटा लिंक लेयर ये पकड़ेगा क्योंकि इसने अब देखा ये कि रिक्वेस्ट आ गई। ये वेट फॉर इवेंट में हम ये क्यों कर रहे हैं यार? ये थोड़ी यहाँ पे वेट फॉर इवेंट में ये खाली वेट करेगा, जो इवेंट होगा सो इवेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लगाएंगे हम, इफ इवेंट अगर आपका है रिक्वेस्ट टू सेंड, ठीक है, तब क्या करना चाहिए? गेट डेटा। ये डेटा दरअसल है क्या? पैकेट्स विच आर गिवन बाय टू ऑफ सेंडर। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अच्छा, गेट डेटा करेंगे खाली, और क्या करेंगे? मेक फ्रेम। हाँ जी, बाकी सब जो है ना थोड़े आवाज में बोलो यार। मेक फ्रेम। मुझे लग रहा है कि आप सो रहे हो, पीछे वाले तो सो ही रहे हैं जो मेक फ्रेम। अच्छा, गेट डेटा मेक फ्रेम, फिर सेंड फ्रेम। अच्छा करो सेंड, लेकिन इसमें गेट डेटा जब करोगे ना, इसमें खाली गेट डेटा आप नहीं चलेगा, इसमें आपको थोड़ा सा और भी काम करना पड़ेगा। कोई बताएगा क्या? नहीं नहीं, मैं बताऊँ गेट डेटा, लेकिन कौन सा? आप ये नहीं चलेगा।
यस, हमारे पास सीक्वेंस नंबर है ना 0 जो है, अब 0 हो या 1 हो जो भी है। SEQ रखा मैंने, SEQ नंबर SEQ। अच्छा, मेक फ्रेम कौन सा, सीक्वेंस वाला। अब सेंड करो, ये फ्रेम को सेंड करो, वो भी सीक्वेंस वाला, ठीक है। क्या ये किया सेंड। उसके बाद ये बता रहा है कि स्टोर करो इसको, बिकॉज हम स्टोर क्यों करेंगे वो बताएगा मुझे, व्हाई वी स्टोर इट। यस, हो सकता है मैं रीसेंड कर रहा होगा इसलिए हम स्टोर करेंगे इसको, इसलिए आप बफर्स रखने पड़ेंगे आपको, हाँ, जहां पे स्टोर होगा। अच्छा जी, फिर कैन सेंड ये बता रहा है फॉल्स बनाओ। और क्या करना है इसमें, वेरी गुड, द टाइमर, वी शुड स्टार्ट टाइमर व्हेन यू हैव सेंड द फ्रेम, बिकॉज जो ही मैंने फ्रेम सेंड किया मैं एक टाइमर सेट करूंगा कि उस टाइमर के हिसाब से मुझे आना चाहिए कौन, अगर वो टाइम आउट हो गया तो फिर मुझे फिर से सेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं टाइमर सेट करूंगा इससे पहले कि मैं सेंड फ्रेम करूंगा। यहां पे आई विल सेट टाइमर, यहां पे होगा, ठीक है। सेंड फ्रेम के पहले मैं सेट टाइमर करूंगा, फ्रेम को सेंड करूंगा, ठीक है। वो स्टोर करूंगा फ्रेम कैन सेंड इज इक्वल टू फॉल्स। और कुछ, ये इस इफ में होगा जब आप रिक्वेस्ट टू सेंड कर रहे हो। अब हमारे एक और इवेंट होगा, वो कौन सा होगा, एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का होगा ना, एक्नॉलेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है जनाब। और टाइम आउट का भी एक इवेंट होगा कि अगर टाइम आउट हो गया उसका भी एक इवेंट होगा। सो यहां पे आप दूसरा इवेंट ये है कि इफ इवेंट अगर हमारा है, कौन सा इवेंट है, अराइवल नोटिफिकेशन, कि कोई बंदा आ गया है। अब कौन आ सकता है वहां हमारे घर, रसीद ही आ सकता है ना, एक्नॉलेजमेंट ही आ सकती है, और कौन आएगा, ठीक है जनाब। अब जब ये एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है, उसको तो रिसीव करेंगे ACK, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा इसका, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 7 होगा ना। अच्छा, रिसीव करेंगे एक्नॉलेजमेंट को, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट किस चीज की है, क्या ये करेक्ट एक्नॉलेजमेंट है या नहीं, है ना, बात समझ आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इफ क्या बताओ, इफ नॉट करप्टेड ACQ, अगर एक्नॉलेजमेंट जो आपका है वो करप्टेड नहीं है। अच्छा, यहां पे एक बात मैं ये भूल ही गई यहां पे आपको, जो हम कह रहे हैं ना कि वाइल ट्रू इफ इवेंट इज इक्वल RTS, है ना, रिक्वेस्ट टू सेंड, यहां पे हम गलती कर रहे हैं, वो आप ऊपर भी देख लो, वो इसमें भी गलती होगी, क्योंकि फ्लो कंट्रोल तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा मकसद था फ्लो कंट्रोल करना, है ना। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, रिक्वेस्ट टू सेंड, यहां बताओ जरा मुझे क्या फ्लो कंट्रोल होगा, ईमेल मैसेज रिक्वेस्ट टू सेंड, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे रिक्वेस्ट टू सेंड आ गया फ्रॉम नेटवर्क क्लियर, ठीक है। आप इवेंट चेक कर रहे हो, हाँ रिक्वेस्ट सेंड है, हाँ है, आप गेट डेटा कर रहे हो, मेक फ्रेम कर रहे हो, उसको भेज रहे हो, और कैन सेंड बना रहे हो फॉल्स, ठीक है। अच्छा, फिर से इवेंट आ गया रिक्वेस्ट टू सेंड, ये इसके ऊपर जा रहा है, क्या इसको रोक पाएगा यहां पे, क्योंकि ये रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम कैन सेंड को चेक ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे। कैन सेंड ट्रू कैन सेंड फॉल्स बना रहे हैं हम, लेकिन कैन सेंड को चेक कर रहे हैं कि कहीं ये ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि ट्रू पे हमें काम करना है, अगर ट्रू है तब काम करो। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पे, मैं यहां पे कहूंगा एंड कैन सेंड, खाली कैन सेंड लिखो, वही होता है कैन सेंड इज इक्वल ट्रू, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट टू सेंड है कि नेटवर्क लेयर भेज रही है, आप मुझको ये डेटा भेजना है,
लेकिन आप देखो पहले आप भेज सकते हो नहीं, कैन सेंड ट्रू है फॉल्स, अभी फॉल्स था ना, अब अगर फिर से पैकेट आ गया नहीं भेजेगा इसको, क्योंकि कैन सेंड फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इस इवेंट का इंतजार करेगा जहां पे वो एक्नॉलेजमेंट आएगी और कैन सेंड ट्रू बनेगा। जब कैन सेंड ट्रू है, अब अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो वो इसको कर सकता है, बिकॉज कैन सेंड ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, रिक्वेस्ट टू सेंड भी है और कैन सेंड भी है। अब आ गया फ्लो कंट्रोल। ठीक है, इसमें हमने गड़बड़ किया था। अब यहां पर भी हम क्या कहेंगे, यहां पे इसको इफ का जो ये ब्रेस है इसके अंदर है ना, एंड कैन सेंड इज इक्वल ट्रू, या खाली बोलो कैन सेंड। ठीक है, क्योंकि कैन सेंड हमारा बूलियन है। कैन सेंड क्या है हमारा, इट इज टेकिंग ट्रू और फॉल्स, इट इज बूलियन। So it is taking true or false. So you can say only can send. No necessary to say can send is equal true. अगर रिक्वेस्ट सेंड है और कैन सेंड है। ठीक है, अच्छा, इफ नॉट करप्ट एक्नॉलेजमेंट। अब अगर एक्नॉलेजमेंट आपका जो करप्ट नहीं है, अगर आपका एक्नॉलेजमेंट करप्टेड नहीं है, खाली इतना ही मत होना चाहिए वो करप्ट नहीं होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए जो मेरा सीक्वेंस नंबर होगा। तो सीक्वेंस नंबर को मैंने इंक्रीज भी नहीं किया यहाँ पे, तो करना चाहिए था इंक्रीज यहाँ पे। कहाँ पे जी, क्या कर रहे हैं? तो ये अराइवल तो आएगा ही नहीं, इवेंट होगा ही नहीं कभी। ये इवेंट कहाँ होगा? इवेंट तभी होगा जब कोई चीज़ आया है आपके पास, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम आ गया है, ये जागेगा ना, वरना स्लीप में होगा। ये तभी जागेगा जब इवेंट होगा। इवेंट अगर होगा एक्नॉलेजमेंट वाला, तब जाके ये काम करेगा उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर जो आया हुआ है। अगर नहीं आया है तो ये इफ क्लास जो है वो इफ क्लास ही नहीं होगा एग्जीक्यूट, बिकॉज आपके पास इवेंट ही नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ भूल गए हम, आपने कैंसिल फॉल्स किया, लेकिन आपको आपका ये जो है ना, कौन आपका जो है ना ये सीक्वेंस नंबर, तो इंक्रीमेंट करना है कि नहीं करना है? सो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट करोगे अपने, इसके बाद इंक्रीमेंट करोगे, सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू सीक्वेंस नंबर प्लस 1, है ना। अब आपका अगर सीक्वेंस 0 था, अब क्या बना है? 1। 0 + 1 इज 1, 0 + 1 इज 1, सीक्वेंस नंबर इज 1। आप ध्यान रखो, शादाब मैं इसको अभी थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, बट जस्ट बी इंटरेस्टेड। तो बुझे, इफ नॉट करप्ट, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गई है, अगर वो करप्ट नहीं है, अगर वो करप्ट, लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सीक्वेंस नंबर के साथ मेल खाना चाहिए। ठीक है, एंड जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो बराबर होना चाहिए किसके साथ? सीक्वेंस नंबर के साथ। तब बात बनती है कि तब उसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो करेक्ट है, जब ये दोनों चीजें होंगी, कि वो करप्ट भी नहीं होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर के बराबर होगा। अब मुझे यहां बताओ, अगर मेरा पहला सीक्वेंस नंबर क्या था? 0, लेकिन यहां पे क्या बन गया वो? मैं तो 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेम जो मैंने भेजा वो कौन सा था? 0 वाला। पास में जा रही है? नहीं, ये ठीक है, क्योंकि जो एक्नॉलेजमेंट वहां से आएगी वो 0 की नहीं 1 की होगी, मैं बता चुका हूं, वो आगे वाली की होगी, वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग। जो एक्नॉलेजमेंट वहां से आएगा वो होगा किसका? वो 1 की एक्नॉलेजमेंट होगी, ना कि 0 की। यानी कि उसका मतलब 1 भेजो, आप 0 आ गया। ठीक है, जैसे आप भेज रहे हो 1, मैं वापस आपको 1, आप भेज रहे हो मुझे कोई चीज, पैकेट नंबर 1 भेज रहे हो मेरे पास, मैं एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा हूं 1, मैं कह रहा हूं 2, यानी कि 2 भेजो। जो मैंने कहा 2 का, उसका मतलब 1 पहुंच गया है, और भेजना कौन है? 2। इसलिए जब हम ये काम करेंगे, जब हम एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे वापस, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर हम 0 की नहीं 1 की भेजेंगे, और अगर 1 होगा तो 0 की भेजेंगे। मॉड्यूलो 2 होता है ना। ये बात समझ आ रही है नहीं? ये इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप दिमाग रखो बस थोड़ा सा। अच्छा, अब अगर देखें, हमने ये अराइवल, ये हम कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर काम, किसके काम कर रहे हैं? अगर अब ये ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर खराब ही नहीं है और एक्नॉलेजमेंट नंबर बराबर है सीक्वेंस नंबर के, यानी कि उसका मतलब है हमारा फ्रेम सही सलामत पहुंच गया है। अब जब ये पहुंच गया है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? कैन सेंड को ट्रू करना चाहिए, लेकिन और भी कुछ करना चाहिए ना।
अब वो फ्रेम स्टोर रखने की ज़रूरत है? वो खामखा पे हमें जो जगह जगह पकड़ रहा है ना, अब जब वो पहुंच गया सही सलामत, हमें क्यों स्टोर करेंगे, हम उसको पर्ज करेंगे। अब उसको पर्ज करो, लेकिन किसको करो पर्ज, जरा बताओ। सीक्वेंस नंबर क्या होगा उसका, क्योंकि हम सीक्वेंस आगे चला चुके हैं। सीक्वेंस -1 जो आपका है उसको पर्ज करो, और जो कैन सेंड है आपका उसको ट्रू बनाओ कि आप भेज सकते हो। PURG, पर्ज मीन्स उसको, कैन अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, जो आपके इसमें स्टोर हुआ था उसको आप डिलीट करो, यानी कि आपको जरूरत नहीं है वो स्टोर रखने की, क्योंकि वो सही तरीके से आ गया है। बात समझ आती है? अच्छा, इसमें जरा बताओ, अगर ये नॉट करप्टेड है, हम बता रहे थे कि अगर ये नॉट करप्टेड है और एक्नॉलेज नंबर जो है वो बराबर सीक्वेंस के, अगर ये दोनों नहीं हुए, दोनों में कोई फॉल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्स हो सकता है कि एक्नॉलेज नंबर जो है वो सीक्वेंस नंबर के बराबर नहीं है, ठीक है, मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे फ्रेम के साथ, या करप्ट हो गया एक्नॉलेज नंबर, हमें तो पता नहीं कि अभी पहुंच गया सीरियसली या नहीं पहुंच गया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रीसेंड करना चाहिए, वरना आप एल्स पार्ट में इसके क्या करो, इसके एल्स पार्ट में इसको रीसेंड करो। कौन सा वाला, इसको रीसेंड करो, सेट टाइमर करो, पहले वापस सेट टाइमर को स्टार्ट करो फिर से, ठीक है, और रीसेंड करो। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये नहीं आया है ना ही एक्नॉलेजमेंट आ गई, एक्नॉलेजमेंट आई नहीं, जैसे वो बोल रही थी कि एक्नॉलेजमेंट आई नहीं आपके दर पे, जब आपके दर पे एक्नॉलेजमेंट आई नहीं तो अराइवल नोटिफिकेशन हुई नहीं, तो ये सारा कोड चलेगा ही नहीं। इसलिए एक और इवेंट का हमें करना चाहिए, कौन सा, इफ इवेंट, कौन सा, स्टॉप टाइमर या टाइमर, टाइम अप, वी कैन से टाइम, अगर टाइम अप हो गया कि आपका टाइम खत्म हो गया, अगर आपका टाइम अप है, ठीक है, अब बताओ अगर टाइम अप आपका हो गया ना, तो आपको रीसेंड करना पड़ेगा, है ना। आप एक काम करो, रीसेंड करो, पहले सेट टाइमर करो फिर से, वेरी गुड, रीसेंड करो, रीसेंड फ्रेम, कौन सा, सीक्वेंस -1, क्योंकि सीक्वेंस आगे बढ़ गया ना पुराना वाला, और बस इतना ही करेंगे, सेट टाइमर करेंगे, रीसेंड करेंगे, बाद में कुछ नहीं। बाकी तो आपने कैन सेंड जो आपने फॉल्स बनाया ही है, और वो स्टोर है ही कि जब तक, और तब तक जब तक ये इफ क्लास नहीं होता तब तक ये चीज़ चलता जाएगा, जब तक ये इफ क्लास ट्रू नहीं होगा, जब तक ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ मतलब कि जो एक्नॉलेजमेंट आ गई वो करप्ट भी नहीं होगी और उसका सीक्वेंस नंबर के बराबर होगा, तो तब जाके आप उसको पर्ज करोगे और कैन सेंड क्या बनाओगे, ट्रू बनाओगे। हाँ, ठीक, ओके, so this is what is we have done it, yeah, any problem, no, fine, ठीक है। अब रिसिपिएंट का काम है कि रिसीवर क्या काम करेगा, ठीक है, अच्छा क्या करेगा रिसीवर, बताएगा कोई मुझे। अब ये रिसीवर का कोड होगा, उसका अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर काम, जैसे हमने वहां पे लिखा रिक्वेस्ट सीक्वेंस, लिखा सीक्वेंस, यहाँ पे होगा एक्नॉलेजमेंट, उसको 0 रखेंगे फिलहाल हम, ठीक है, फिर वाइल ट्रू वाला लूप चलेगा, ओके, फिर इट विल वेट फॉर इवेंट, व्हाट इवेंट इट विल वेट फॉर, यस,
इट विल वेट फॉर इवेंट, यानी कि इट इज स्लीपिंग इन अ स्लीप क्यू, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर पुट इट इनटू द व्हाट, यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होगा जो वो इसको स्लीप क्यू में रखेगा एंड ऑल, यू नो दैट स्टफ। अब इट विल वेट कि अगर इवेंट आ गया, इफ इवेंट कौन सा होगा, अराइवल नोटिफिकेशन अगर होगी आपकी, ठीक है जनाब, तो क्या करेंगे आप, हाँ रिसीव करो उसको, रिसीव फ्रेम, ठीक है। और उसका जो वहां पे होगा वो ऐसी क्यू होगा, जो है सो है, ठीक है ना। अच्छा, आपने रिसीव फ्रेम किया, उसको क्या करोगे आप, स्ट्रिप करो उसको, उसमें निकालो अपना ये स्ट्रिप फ्रेम जिसका सीक्वेंस नंबर होगा जो वहां से आ गया, ठीक है। अच्छा अब डिलीवर द डेटा, लेकिन एक मसला है कि फ्रेम जब आएगा, ठीक है, फ्रेम जब वहां से आ गया, हो सकता है वो फ्रेम करप्टेड हो, फ्रेम आ गया, ये नहीं हो सकता कि वो फ्रेम करप्ट है, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, वो फ्रेम भी करप्ट हो सकता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ये जो फ्रेम था वो करप्टेड तो नहीं था। और दूसरा कि उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो मेरे एक्नॉलेज नंबर के बराबर है। मैं तभी इसको जब ये जो है रिसीव फ्रेम करूंगा, उसके बाद स्ट्रिप एंड ऑल मैं डिलीवर डेटा तब करूंगा जब ये फ्रेम नॉन करप्टेड फ्रेम है, एरर फ्री फ्रेम है, और जो उसके अंदर सीक्वेंस नंबर छुपा है वो मेरे किसके बराबर है, एक्नॉलेज बराबर है। सीक्वेंस नंबर तो वहां भी जीरो था ना, एक्नॉलेज नंबर भी जीरो है। तो यहां पे इससे पहले कि मैं ये करूं स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप करूं, अभी इसे कपड़े में निकालूंगा नहीं, रखना है ना वन, वो भेजेंगे एक्नॉलेज वन, वो सेंड वापस जब सेंड करेंगे, यस जब सेंड करेंगे यानी कि हमने पकड़ लिया, अब भेजो वन, तो अब हम कहेंगे क्या, इफ नॉट करप्टेड सीक्वेंस नंबर जो है एंड ए सी क्यू इज इक्वल टू सीक्वेंस नंबर इज इक्वल सीक्वेंस नंबर, यानी कि मेरा जो फ्रेम है वो परफेक्ट वही है जो मैं चाहता था, जिसकी मुझे एक्नॉलेज भेजनी है, ठीक है। तो अगर ये सूरत है तो इस सूरत में आप क्या करो, अच्छा अगर नॉट करप्टेड है और सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट किसके बराबर है, सीक्वेंस नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे स्ट्रिप करो इसको, कपड़े निकालो इसके, लेकिन सारे कपड़े नहीं निकालना इसके प्लीज, बाकी कम वो उसके ऊपर रखो, नेटवर्क लेयर के ऊपर स्ट्रिप करो फ्रेम जो सीक्वेंस वाला है एस क्यू, और डिलीवर डेटा। अब तो ये फ्रेम नहीं रहा ना, कपड़ों के साथ इंसान होता है, जो कपड़े नहीं तो कहाँ होता है इंसान, अब ये दे दो किसको, फिर तो वो जानवर बन जाता है, दिया उसको, फिर हाँ सेंड करो, अब उसको फ्रेम ही कहेंगे ना, वो भी फ्रेम ही है, वो क्या है, लेकिन ए सी क्यू उसका नंबर क्या रखो, यस वेरी गुड। पहले यहां पे हम क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट प्लस वन, ए सी क्यू इज इक्वल टू ए सी क्यू है, क्या लिखा मैंने, ए सी के इज इक्वल प्लस वन, अब भेजो वो, ठीक है। और कुछ करना है इसमें, हाँ अगर अगर ये मान लीजिए नॉट, अगर करप्टेड था तो, अगर ये करप्टेड था क्या करेगा बताओ जरा,
हाँ, वेरी गुड, ब्यूटीफुल. You do nothing but sleep. Beautiful. ये showing you. अगर इसको फ्रेम ये यानी कि एक्नॉलेजमेंट भेजना ही नहीं इसको. अगर करप्टेड फ्रेम है या आपने जो सीक्वेंस नंबर था आपका वो पता नहीं क्या आ रहा है आपका एक्नॉलेजमेंट, जिसका यानी कि जो आपका एक्नॉलेजमेंट देना है वो तो फ्रेम आ नहीं रहा, पता नहीं कौन सा फ्रेम आ रहा है, ये इसका यानी कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ही नहीं वापस. ये बिहेव करके मैंने पकड़ा ही नहीं. होकर रिपॉन टाइम आउट कुछ sender will time out and will resend, no problem, so it will sleep. You getting me? Then what it does is he will say the हाँ क्या 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 कुछ डुप्लीकेट तो उसको आता है, उसको कहाँ आएगा डुप्लीकेट? जरा आंसर एक मिनट सुनने दो. क्वेश्चन क्या है? अगर टाइम आउट हो गया यू मीन से एक्नॉलेजमेंट इसको अगर आ गया वो तो हम चेक कर रहे हैं ना डुप्लीकेट फ्रेम यहाँ पे. अगर फ्रेम वही है जो हम चाहते हैं, ठीक है, तो ठीक है कर लो ऐसा काम. अगर डुप्लीकेट फ्रेम है या कोई भी फ्रेम है या कुछ भी है वो एल्स में जाएगा, स्लिप करेगा, यानी कि वो इसको पकड़ेगा नहीं, वो इसको ना ही पकड़ेगा, ना ही डिलीवर करेगा, ना ही स्ट्रिप करेगा, वो तो खुद ही डिस्कार्ड ही होगा. दैट फ्रेम विल बी डिस्कार्डेड बिकॉज ना ही ये उसको स्ट्रिप कर रहा है, ये रिसीव तो कर रहा है. देखो ये तो रिसीव कर रहा है ना, रिसीव तो करेगा फ्रेम. बहरहाल जो भी आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है उसको रिसीव करो, लेकिन उसके ऊपर फिर वो काम मत करो क्योंकि वो डुप्लीकेट है या क्या है. क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपकी सीक्वेंस अगर वो डुप्लीकेट मतलब होगा जो आप वो होगा नहीं, फिर ये एरर कर जाएगा यहाँ पे, दिस विल नॉट बी ट्रू. या अगर वो मान लीजिए खराब ही था, दिस विल नॉट बी ट्रू. ठीक है, दोनों में कुछ नहीं होगा. ये चीज़ तो होगी नहीं. जब ये चीज़ होगी नहीं इट विल गो टू हियर एंड इट विल स्लीप. गेटिंग आंसर और नॉट? श्योर? एनी डाउट्स? Now go to home, give it a recap. ठीक है, tomorrow we move on with it, but you have to recap it. You all sit down.